So, hello and welcome to my YouTube channel. So, अभी जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस प्रोजेक्ट को वुफ ऐप जो बना रहे थे और उसके अंदर इस वाले कोड लैब में हम लोग एनिमेशन ऐड करेंगे जेटपैक कंपोज में एंड लेट्स सी what we have in this and how to add animation to any composable. So ये basic intro to CodeLab है. In this CodeLab, you learn how to add simple animation to your Android app. Animations can make your app more interactive, interesting, and easier for user to interpret. Animating individual updates on a screen full of information can help the user see what changed. There are many types of animations that can be used in an app's user interface. Items can fade in as they appear and fade out as they disappear. They can move on or off the screen, or they can transform in interesting ways. This helps make the app's UI expressive and easy to use. Animations can also add a polished look to your app, which gives it an elegant look and feel, and also helps the user at the same time. Okay, so animations basically हमारे ऐप को यूजेबल बनाती है, आराम बात यूजर फ्रेंडली बनाती है. So let's see what we will add in this code lab. In the material theming with the Jetpack Compose code lab, you created the Woof app using material design, which displays a list of dogs and their information. So ये है, okay, nothing special. In this code lab, you will add animation to the Woof app. You will add hobby information, which will display when you expand the list items. तो लिस्ट आइटम्स को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो वो हॉबी शो करेगा, जैसे इधर, जैसे ये, और आ जाओ ये, ठीक है. You will also add a spring animation to animate the list item being expanded. तो स्टार्टर कोड वही प्रीवियस जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से जो है शुरू. इसमें कैसे कराई? हाँ, डाउनलोड करके डायरेक्टरी में एंटर, डायरेक्टरी ओपन करके उसकी एक नई ब्रांच बना दो. Add expand more icon. In this section, you will add the expand more and expand less icons to your app. Okay. अब icons के बारे में ही बता रहा है कुछ. Icons are symbols that can help user understand a user interface by visually communicating the intended function. They often take inspirations from objects in the physical world that a user is expected to have experienced. Icon design often reduces the level of detail to the minimum required to be familiar to a user. For example, a pencil in the physical world is using for writing, so its icon counterpart usually indicates create or edit. तो क्रिएट और एडिट के लिए हम पेंसिल आइकन यूज़ करते हैं, जैसे क्योंकि जो है हमें पता है कि पेंसिल आइकन मतलब जो है पेंसिल, जो है पेंसिल से जो है हम राइट करते हैं कुछ, इसलिए क्रिएट और एडिट में यूज़ करते हैं. राइट में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, कोई राइटिंग एक्शन है. मटेरियल डिजाइन प्रोवाइड द नंबर ऑफ आइकन्स अरेंज्ड इन कॉमन कैटेगरी फॉर मोस्ट ऑफ योर नीड्स. देखो नंबर आइकन्स भी दिखा देता हूँ तुम्हें. मटेरियल आइकन, ये गूगल की जो साइट है ना, इस पर सब कुछ है. ये रहा मटेरियल, ये रहा font.google.com/icons पे चले जाओ. ये देखो इतने सारे आइकन्स हैं, तुम फिल्टर कर सकते हो, वेट बढ़ाना, वेट घटाना, मटेरियल थीम, न्यू सिंबल्स, मटेरियल आइकन, और इतने सारी कैटेगरीज हैं. टेक्स्ट, टेक्स्ट से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड कैटेगरीज हैं. तो यहाँ से कैटेगरीज हम उठाएंगे. चलो, ऐड ग्रेडल डिपेंडेंसी. Add the material icons extended library dependency to your project. You will use the icons filled expand less and icons filled expand more icons from this library.
तो इस लाइब्रेरी से हम लोग ये दो इसकी फंक्शनैलिटीज यूज करेंगे. Note on Gradle dependency. To add a dependency to your project, specify a dependency configuration such as implementation in the dependencies block of your modules build.gradle.kts file. लाओ मटेरियल आइकन एक्सटेंडेड कर लेते हैं ऐड. इसके लिए जाते हैं ग्रेडल में. ठीक है, डिपेंडेंसी ये वाला है क्या? ये डिपेंडेंसी मटेरियल आइकन एक्सटेंडेड वो बताएगा कैसे करना. ये रहा. प्रोजेक्ट पेन पे जाओ, बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस. केटीएस में भी कौन सा मॉड्यूल ऐप, वही जो मैं देख रहा था. ये रही डिपेंडेंसी नीचे है ना, ध्यान में होगे तो ऐसा ही होगा. यहाँ जाओ और इसको ऐड कर दो. अब ये क्योंकि ऐड हो गया है, अब इसको सिंक्रोनाइज करेंगे. वैसे ये बिना इसके ऐड होगा. लाओ देखें. बिना उसके वो सॉरी. ये इस तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाएगी. ये देखो ये आ गया. तो इस तरीके से हम जो है डिपेंडेंसीज ऐड भी कर सकते हैं. यहीं से हटा दो इसे तो रिमूव भी हो जाएगा. अब क्योंकि ये एक इम्प्लीमेंटेशन वाली है तो उसको जो है नीचे से ऊपर लेके आते हैं. हाँ वो मुझे पता है एरर देगा. ऑल्ट शिफ्ट अप एरो से ये लाइन ऑफ कोड ऊपर मूव कर जाएगा, डाउन एरो से नीचे मूव कर जाएगा. हम जहाँ चाहे वहाँ मूव करो, इससे कोई पंगा नहीं है. क्या हो गया इसमें? लिब्स डॉट हंड्रेड एक्स डॉट कंपोज डॉट मटेरियल थ्री डॉट. इसमें बता देंगे क्या है मटेरियल डॉट आइकन 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 यूआई आइकन डॉट स्टैंडर्ड. कैसे कर देते हैं? कैसे था मैं भूल गया. अभी अभी था जब सामने देखा मैं भूल गया. कोई हेल्प नहीं. क्या ये बड़ा खराब काम है. हाँ कैसे था. हाँ ये एंड्रॉयड एक्स मटेरियल थ्री डॉट कंपोज. ठीक है. और इसको एक बार के लिए कट करो और एंड्रॉयड एक्स में देखो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. कंपोज ही देना पड़ेगा. आइकन और ट्राई अगेन.
लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज ऐड कर रहा है, फिगर आउट करना पड़ता है कैसे चीजें होंगी। और लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज कभी होती नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो वो अलग से ऐड करनी पड़ती है डिपेंडेंसीज को अप्लाई करने के लिए। लेट्स वेट। और जब तक ये कर रहा है, क्योंकि ये डिफाइंड है, ठीक होगा। हम देखते हैं आगे क्या है। ऐड द आइकन कंपोजेबल। अब ऑन क्लिक का हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे डॉग आइटम बटन के साथ। ऐड अ फंक्शन, add a function to display the expand more icon from the material icons library and use it as a button in main activity kt. After the dog item function, create a new composable function called dog item button. Pass in a boolean for the expanded state, a lambda expression for the button on click handler, and an optional modifier as follows. क्या हुआ? अब जो है ये नहीं कर रहा, क्या हो गया इसको? कंपोज यूआई डॉट, अरे कंपोज और एक्टिविटी डॉट कंपोज डॉट, ये दोनों ही अलाउ नहीं करता। आइकन इसमें देखते हैं, इम्पोर्ट एंड्रॉइड डॉट कंपोज मटेरियल 3 डॉट आइकन। हमको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हुआ है, क्योंकि नहीं कर रहा, which is a issue actually, but कोई नहीं, इशू है तो सोल्यूशन भी होगा कुछ। ये हटाओ जो इशू कर रहा, हटाओ, इशू कर रहा है तो हटाओ, आगे से हटाओ। ऐड द आइकन कंपोजेबल। अब आइकन कंपोजेबल के लिए हम लोग एक और कंपोजेबल बनाएंगे, डॉग आइटम बटन, ठीक है। और इस कंपोजेबल को डॉग आइटम फंक्शन के बाद कॉल करेंगे इस वाले कंपोजेबल। लेट्स कॉपी इट, वो फैप टॉप बार, और क्योंकि इसके नीचे ही कॉल करना है तो इसके नीचे ही इसको बना देते हैं डॉग आइटम बटन। और यहाँ पे इसको कॉल करना है ये इधर डॉग आइटम के बाद, नहीं आइटम्स में थोड़ी जाएगा, कहाँ गए वो दो कॉल कर रखे हैं, हटाओ इसको नीचे करो। भाई मैंने ही लिखा है ये प्रोग्राम, डॉग आइकन और डॉग आइटम। हम्म 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 ठीक है। inside the dog item button function, add an icon button, add an icon button composable, okay, that accepts an on click name parameter, ठीक है। अब उस फंक्शन में हमको क्या करना है,
आइकन बटन कॉल करेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो ऑन क्लिक में इक्वल्स टू ऑन क्लिक कर देंगे और मॉडिफायर में हम मॉडिफायर पास कर देंगे, ओके। Inside the dock item button function, add icon button composable that accepts an on-click named parameter a lambda using trailing lambda syntax that is invoked when this icon is pressed and an optional modifier. Set the icon buttons on click and modifier value parameters equal to the ones passed into dog item button. तो ये हमने सेटअप कर दिया, ठीक है। Inside the button lambda block, add in an icon composable and set the image vector value parameter to this, ठीक है, icons field expand more. This will display at the end of the list item this, ठीक है, expand more दिखाएगा। Android Studio shows you a warning for the icon composable parameter that you will fix in the next step, ठीक है। तो पहले तो ये करो, कहाँ चला गया, आइकन ऐड करेंगे एक, इंपोर्ट करते हैं इसे, ठीक है। आइकन ऐड करा, इमेज वेक्टर आइकन्स डॉट फील्ड डॉट एक्सपैंड मोर, ओके। अब इसके बाद एक्सपैंड मोर लगाने के बाद ये इंपोर्ट्स हैं, मटेरियल आइकन्स एक्सपैंड मोर आइकन्स आइकन और आइकन बटन, इसको इधर ऐड कर दो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल, कंटेंट डिस्क्रिप्शन नॉर्मली नल ही ऐड करते हैं, कलर इसमें ऐड करा गया, ठीक है। हाँ होगा, तभी कह रहे हैं। स्ट्रिंग रिसोर्स r डॉट स्ट्रिंग डॉट डॉग डिस्क्रिप्शन वन, यप, नहीं, एक्सपैंडेड कंटेंट बटन कंटेंट डिस्क्रिप्शन, और फिर एक टिंट है जो कि कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, मटेरियल थीम कलर स्कीम में हम लोग सेकेंडरी कलर स्कीम हमने एडिट करी हुई है, मैनुअली एडिटेड है, एक्सपैंड मोर आया नहीं, एक्सपैंड मोर डिस्प्ले द आइकन। अब इसके लिए रिमेंबर स्टेट आती है नॉर्मली, और उससे पहले हम एक इशू सॉल्व करते हैं। इसमें जो एक्सपैंड मोड है वो काम नहीं कर रहा और डिपेंडेंसी भी ऐड नहीं हो रही, मोर इज नॉट वर्किंग और अवेलेबल एंड डिपेंडेंसी आर नॉट गेटिंग एडेड इन ग्रेडल फाइल।
रिलोड 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 नहीं है, थिंकिंग है वो। रिलोड अलग होता है, रिलोड इज वेरी डिफरेंट। हाँ ये करा था मैंने पर हुआ तो नहीं। इधर इधर और ये इधर इधर से synchronize it. However, it is not getting synchronized. Dependency management ये डाउनलोड कर रहा है आप। समथिंग इट इज डाउनलोडिंग। एक्सटेंडेड आइकन ही आ रहा है, एक्सटेंडेड आइकन पहले नहीं कर रहा था। एक तो एक डिपेंडेंसी के साथ एक चीज नहीं है, एक डिपेंडेंसी के साथ एक चीज नहीं है, कई चीजें आती हैं। हम्म। हो गया हो गया। तो ये डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। इज देयर एनी वे, एनी अदर वे टू राइट इट डाउन? ऐड लाइब्रेरी डिपेंडेंसी इंक्लूड लोकल वेरिएबल, इसको मैं हटा दूंगा। libs डॉट एंड्रॉयड एक्स डॉट कंपोज डॉट मटेरियल सी डॉट मटेरियल डॉट आ गया आइकन्स डॉट एक्सटेंडेड। कर गया। अब लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ऐड हो गई ना, इसलिए कर गया। हाँ, ये भी काम कर जाएगा क्योंकि उधर ऐड हो गया ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया, ऐड हो गया। नॉर्मल इश्यूज, नॉर्मल एंड्रॉइड स्टूडियो इश्यूज आते रहते हैं। वही सबसे पहले आपने घबराना नहीं। डिस्प्ले द डॉग आइटम बटन कंपोजेबल बाय एडिंग इट टू द लेआउट। लेआउट में ऐड कर देंगे। ओके, ऐड एट द बिगनिंग ऑफ द डॉग आइटम, ऐड अ var to save the expanded state of the list item, set the initial value to false। अब क्या करेंगे, डॉग आइटम की बिगनिंग पे हम लोग एक वेरिएबल सेट कर देंगे। डॉग आइटम के बिगनिंग पे, व्हेन इट सेज डॉग आइटम के बिगनिंग पे, माने कौन सी बिगनिंग पे? हम्म। ला इधर करते हैं, var एक्सपैंडेड है ना, और स्टेट फॉल्स रखनी है ना। रिमेंबर न्यू टेबल स्टेट ऑफ, और इसको सेट कर दो फॉल्स। और रिमेंबर और बाय के लिए रिमेंबर इम्पोर्टेड, और बाय के लिए गेट और सेट वैल्यू। इम्पोर्ट स्टेट सेट, इम्पोर्ट स्टेट गेट। अरे बाबा, ये पढ़ने लायक ही नहीं है।
क्या क्या है? ओके, सेट वैल्यू। तो गेट और सेट वैल्यू हमने इंपोर्ट कर लिया। म्यूटेबल स्टेट ऑफ बना चुका हूँ मैं, ठीक है। उससे क्या होगा, स्टेट हम ध्यान रखेंगे कि वो एक्सपेंडेड है या नहीं है, जो हमारा एक्सपेंडेबल है उसे। रिफ्रेशर ऑन रिमेंबर एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ। Use the mutable state of function to compose observes and changes to the state value and triggers a recomposition to update the UI. Wrap the mutable state of function call with the remember function to store the value in the composition during initial composition and the stored value is returned during recomposition. तो देखो घुमा फिरा के बात ये है कि ये एक्सपैंडेड जो वेरिएबल बनाया है ना मैंने, ये इन फंक्शंस का यूज करके एक ऑब्जर्वर का काम करेगा। सिंपल। डिस्प्ले द आइकन बटन विद इन द लिस्ट आइटम। ओके, लिस्ट आइटम में हम लोग अब जो है आइकन बटन शो करेंगे। इन द डॉग आइटम कंपोजेबल एट द एंड ऑफ द रो ब्लॉक आफ्टर द कॉल टू डॉग इंफॉर्मेशन, after the call to dog information, add dog item button. Pass in pass in the expanded state and an empty lambda for the callback. You will define the on click action in later steps. ओके, ये है हमारे पास डॉग आइटम बटन। एक्सपांडेड में एक्सपांडेड लोगो इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन और ऑन क्लिक। चलो, ऑन क्लिक के लिए हम लेटर स्टेप्स में ऐड करेंगे। चेकआउट प्रीव्यू इन द डिजाइन पेन। लाउड डिजाइन पेन में प्रीव्यू चेक करते हैं क्या चेंज हुआ है। हम्म, हो रहा है रेंडर। रेंडर होने दिया जाए। ये आ गया रेंडर होके, देखो यहाँ पे बटन आ गया, ये वाला आइकन। ठीक है, अभी तक हमने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं करा है, वो सिर्फ इम्पोर्ट का थोड़ा इशू था, बाकी तो कोई खास रॉकेट साइंस नहीं करा है। चलो, notice the expand more button is now aligned to the end of the list item. You will fix that in the next step. हाँ, हमको क्या करना है ना, ये वाला उठा के या तो मैं इधर लगाऊंगा या फिर मैं बॉटम में लगाऊंगा, देखते हैं वो तो। अलाइन द एक्सपैंड मोर बटन। To align the expand more button to the end of the list item, you need to add a spacer in the layout with the modifier weight attribute. इसमें 1F 2F 3F, 1F और 2F है। uh, ठीक है, weight sets the UI elements width height proportionally to the element's weight relative to its weighted sibling, other child elements in the row or column. तो बाकी बाकी एलिमेंट्स के हिसाब से जिस एलिमेंट पे हमने वेट लगाया है उसको वो मॉडिफाई करेगा, उसके साइज को। एक तरीके से समझ लो, विड्थ और हाइट तो साइज ही हो गया। एग्जाम्पल, कंसिडर 3 चाइल्ड एलिमेंट्स इन अ रो with weights 1f, 2 1f 1f and 2f. All child elements have assigned weights in this case. Okay, the available spacer for the row is divided proportionally to the specified weight value, with more available space going to the children with higher weight values. The child elements will distribute the weight as shown below. तो वेट माने समझ लो, प्रायोरिटी समझ लो। 1F 2F से, 1F कम प्रायोरिटी होगी 2F से। ठीक है, कि भाई किसको ज्यादा जगह चाहिए, जिसको ज्यादा जगह चाहिए उसे ज्यादा जगह दे दी जाएगी। अपनी जगह के लिए फाइट करो, वो बात है। चलो, ये हो गया।
In the above row, the first child composable has 1/4 of the row's width. The second child, the second also has 1/4 of the row's width, and the third child has half of the row's width. ठीक है, क्योंकि इसका weight ज़्यादा है. If the children don't have assigned weights, weight is an optional parameter, then the child composable's height, weight, width would default to wrapping the contents of what is inside the UI element. ठीक है, nothing new. Note on the float values. Float values in Kotlin are decimal numbers represented with an F or capital F at the end of the number. अब वो फैप में हम लोग एक स्पेसर ऐड करते हैं पहले. इसने जैसे कहा है वैसे ही. ये रहा यहाँ इसका यूसेज. कंट्रोल और क्लिक से मैं जो है ना किसी भी कंपोजेबल का इंस्टेंट यूसेज पता कर सकता हूँ कि वो कहाँ कहाँ यूज होगा. स्पेसर मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट वेट 1f अलाउ कर दिया है ऐड. अब देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी प्रीव्यू रेंडर होने देते हैं. तो देखो ये कितना बढ़िया तरीके से प्लेस हो गया है यहाँ पे. इसका और इसका गैप कितना सही गैप हो गया. चलो जो हमें चाहिए था एग्जैक्टली वही हो गया. वही बता रहा है अभी ये. इन द वो फैप ईच list item row contains a dog image, dog information, and an expanded more button. You will add spacer composable before the expand more button with weight 1f to properly align the button icons. Since the space is the only weighted child element in the row, it will fill the space remaining in the row after measuring the other unweighted child elements width. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ का गैप जो होगा उसे स्पेसर से भर दिया है इसने. खत्म बात. add the add the spacer to the list item row. अब लिस्ट आइटम रो में स्पेसर ऐड करना है कह रहा है. देखें क्या. हाँ वो कर दिया हमने. मेरे को लगा कि और अलग से कोई स्पेसर. मैं फ्लो में ध्यान ही नहीं दिया. कोई बात नहीं. In dog item between dog information and button dog item button add a spacer pass in a modifier with weight 1f. The modifier weight causes the spacer to fill the space remaining in the row. तो ये स्पेसर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है. मैंने ऐड कर रखा है पहले ही. ये डिजाइन पेज में दिखेगा. चलो नेक्स्ट. चलो ऐड कंपोजेबल टू डिस्प्ले हॉबी. अब एक कंपोजेबल ऐड करेंगे हम हॉबी डिस्प्ले करने के लिए. इन दिस टास्क यू विल ऐड टेक्स्ट कंपोजेबल टू ऐड द डॉग्स हॉबी इंफॉर्मेशन. डॉग हॉबी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे. डॉग की क्या क्या हॉबीज हैं ये ऐड करेंगे अब इस कंपोजेबल में. कार्ड में create a new composable function called dog hobby that takes in a dog's hobby resource, string resource ID, and an optional modifier. मॉडिफायर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फर्दर मेंटेनेबिलिटी बनी रहे कि अगर कुछ और ऐड करना है तो मॉडिफायर के थ्रू मैं जो है उसको थोड़ा और मटेरियल उसका यूआई चेंज कर सकता हूँ. तो इसलिए ये सब बनाया जाता है. अब एक डॉग हॉबी कंपोजेबल बनाना है. डॉग हॉबी कंपोजेबल बना देते हैं. @composable. एक तो ना एंड्रॉइड में सब कुछ ही कंपोजेबल है. डॉग हॉबी. डॉग हॉबी में स्ट्रिंग रेस इंटीजर हॉबी. ठीक है. इसी की तरीके से करते हैं ना. डॉग हॉबी और मॉडिफायर ओके. और अब इस
इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे पहले। Inside the dog hobby compose function, create a column and pass in the modifier passed into dog hobby। ठीक है, एक कॉलम बनाओ, कॉलम में वही वाला मॉडिफायर पास करो जो डॉग हॉबी में यूज हुआ है। ठीक है, और ये अलग से कॉलम इसलिए बनाया है क्योंकि जब जो ये वाला जो आउटपुट है ना, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये आना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये वर्टिकली स्टैक्ड है पहली बात तो। इसके अंदर जो कंटेंट है अबाउट कॉलन बार्किंग एट डैडी, ये वाला जो है वर्टिकली स्टैक्ड है। ओके, इस वजह से जो है कॉलम हम यूज करेंगे। अगर मैं रो वाइज भी कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, इट्स अप टू मी कि मुझे क्या करना है। कॉलम ब्लॉक ऐड टू टेक्स्ट कंपोजेबल्स, टेक्स्ट कंपोजेबल्स ऐड करते हैं, कैपिटल टी, टेक्स्ट कंपोजेबल्स ऐड हो गए। वन टू डिस्प्ले अबाउट टेक्स्ट above the hobby, about the above the hobby information and another to display the hobby information। ठीक है, तो एक टेक्स्ट में हमारा जाएगा आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, देखें हॉबी नाम से कुछ है क्या, अबाउट है, सॉरी अबाउट, और इसको स्टाइल करा गया है, स्टाइल मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट लेबल मीडियम, लेबल स्मॉल, लेबल स्मॉल अच्छा रहेगा इसके हिसाब से, तो वही कभी कोशिश करते हैं इसको फॉलो करें। डॉग हॉबी मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट बॉडी लार्ज। In dog item, the dog hobby composable will go below the row that contain the dog call, dog icon, dog information, spacer, dog item button. To do this, wrap the row with a column so that the hobby can be added below the row। ठीक है, ठीक है, अब डॉग आइटम में हम लोग डॉग हॉबी भी ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे below the row that contains the dog icon, dog information spacer। To do this, wrap row with a column होगा। ठीक है, आ गया, इस रो को, ये जो रो है ये जाएगी कॉलम के अंदर, और इस कॉलम के अंदर जाएगा डॉग हॉबी डॉट स्ट्रिंग डॉट डॉग नेम, डॉग इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, डॉग डिस्क्रिप्शन ही ऐड करोगी। क्या है डॉग डिस्क्रिप्शन में, देखें, ईटिंग ट्रीट्स ऑन टेरेस, ये हॉबी ही लग रहा है। हाँ ये हॉबी ही है, अभी के लिए ये कर दो, बाकी वो जाएगा नहीं क्योंकि हम लोग को डिफाइंड नहीं करना है, हम लोग को चेंजेबल रखना है। तो देखते हैं चेंजेबल के लिए क्या सजेस्ट करता है। ठीक है, कॉलम में ऐड कर दिया मैंने। अब डॉग हॉबी में डॉग डॉट हॉबीज, ओ मैं भूल जाता हूँ ना,
डॉग हॉबी में डॉग डॉग डॉट हॉबी और मॉडिफायर में मॉडिफायर डॉट पैडिंग। एक मिनट, मुझे पता है कि सिंटैक्स अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, पहले स्टार्ट में इसने क्या सजेस्ट करा है? मीडियम स्मॉल मीडियम मीडियम। ठीक है, डायमेंशन रिसोर्स और डायमेंशन मीडियम टॉप से डायमेंशन आर डॉट डायमेंशन डॉट स्मॉल स्टार्ट टॉप बॉटम डायमेंशन रिसोर्स डायमेंशन डॉट मीडियम bottom and dimension resource r dot diamond dot medium। ठीक, चलो चलो ठीक है, डॉग हॉबी कंपोजेबल। ओके, ऐड हो गया। Note on dog hobbies. Dog hobby information for all the dogs is already provided for you as part of the starter code. To see this in your code, open data slash dog.kt file. Observe the dogs list pre-filled with the dog's information. हाँ, वो मैं देख चुका हूँ, मैंने copy paste करा है, मुझे पता है। The complete dog item function should look like this. अब ये है पूरा पूरा dog item function. Check out Woof preview in the design pane. Notice the dog's hobby display. ठीक है, अभी के लिए तो वो शो करेगा आपको। और ये देख आ गई। जैसे ही ऐड करा आ गई। वो आइटम्स लिस्ट हमने पहले ही घुमा रखी है। डॉग हॉबी में गए, रिसोर्स दिए उसे, जो भी डॉग हॉबीज हैं वो शो करेगा। और हमने क्योंकि लेजी कॉलम ऑलरेडी यूज कर रखा है, कहाँ का रखा है वो भी बता दूंगा अभी। एक तो इतना कुछ है, मेरे को टाइम लगता है इस प्रोसेस करने में। देखो, लेजी कॉलम हमने इसमें यूज कर रखा, वो ऐप में। और कोई भी है क्या? और तो बताओ। और हम दो ही जगह हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कहाँ जाएगा। ठीक है, डॉग आइकन डॉग आइटम बटन। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे कर दो, और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा अच्छा दिखने का हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा डॉग आइटम बन चुका है, डॉग आइटम कंपोजेबल। शो और हाइड द हॉबी ऑन बटन क्लिक। अब बटन क्लिक पे हमको जो है हॉबीज इनिशियल बटन क्लिक होगा तो दिखानी है, और दिख ही रही है तो हाइड करनी है। ठीक है, your app has expand more button for every list item, but it does not do anything yet. In this section, you will add the option to hide or reveal the hobby information when the user clicks the expand more button. In the dog item composable function, in the dog item button function call, define the on-click lambda expression. Change the expanded boolean state value to true when the button is clicked, and change it back to false if the button is clicked again। तो उसके लिए इसने ये रखा है। लॉजिक बहुत बढ़िया लगाया। तो हम क्या करेंगे, एक्सपैंडेड को डिफाइन करेंगे, नॉट एक्सपैंडेड। तो ट्रू है तो फॉल्स इवेल्युएट करके वो ऐड कर देगा। ठीक है,
क्योंकि अगर पहले से दिख रहा है तो हम नहीं दिखे वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, और अगर नहीं दिख रही है हॉबी तो दिखे ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो इसलिए नॉट एक्सपैंडेड लगा दिया, वो नॉट ऑपरेटर है, नॉट। क्या है फर्दर? हम्म The logical not operator returns the negated value of the Boolean expression. For example, if expanded is true, then not expanded is evaluates to false. ठीक है? The dog item function wrap the hobby function call with an if check on the expanded boolean. तो ये dog hobby जो है expanded boolean पे if check लगा के, ओके ओके, dog hobby को if expand, जो एक्सपैंडेड की वैल्यू होगी उस हिसाब से डॉगी हॉबी आएगी या नहीं आएगी वो हम देखेंगे। ओके। अब क्योंकि ये चीज देखो अभी क्या है ना, हम लोगों ने एनिमेशन सेट नहीं करा है, तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। स्टार्ट यूआई चेक मोड, यूआई चेक किया क्या है? कोई नहीं, गलत होगा तो स्टॉप करके मैं दोबारा दिखाऊंगा। हाँ ये वाला गलत है, इंटरैक्टिव मोड है वो, मैं ध्यान नहीं दिया। फिर से इसको खोलो इंटरैक्टिव मोड में, स्टार्ट यूआई चेक, ये रहा स्टार्ट इंटरैक्टिव। लेजी कॉलम है तो स्क्रोलेबल तो होना ही चाहिए ऐसे, लेजी कॉलम हमने ऐड कर रखा है तो स्क्रोलेबल तो ये होना ही चाहिए। देखो, ये देखो स्क्रोल भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है शायद लैपटॉप में, इसको तुम चाहो तो स्क्रोल कर सकते हो। एक मिनट रुको। ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे, इस पे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये ऐसे आ गया, हटाएंगे तो ऐसे देखो अभी जो है ना, बिल्कुल फ्लिक कर रहा है, फ्लिक, कोई एनिमेशन टाइप नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो ये जस्ट अपीयर डिसअपीयर कर रहा है बेसिकली, सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो। इंटरैक्टिव मोड में हम चेक कर चुके हैं, ये देखो ये गया इंटरैक्टिव मोड पे, देखो अपीयर डिसअपीयर कर रहा है। तो स्टॉप इंटरैक्टिव मोड, क्लिक स्टॉप इंटरैक्टिव मोड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्रीव्यू पेन, हमें पता है ऑलरेडी, हम इतनी बार यूज कर चुके हैं ये। नोटिस दैट द एक्सपैंड मोर बटन आइकन रिमेन्स द सेम व्हेन द लिस्ट item is expanded. For a better user experience, you will change the icon so that expand mode displays the downward arrow and expand less displays the upward arrow. तो हम ये देखते हैं, स्टार्ट इंटरैक्टिव मोड अगेन। पहले तो ये लैग क्यों करता है? नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से लैग नहीं करना चाहिए, सिर्फ डिजाइन ये रखो। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो रखी है? इतनी तो नॉर्मल है। ठीक है, ये तुम्हारा, अब देखो जब मैं इसको क्लिक करूं तो देखो अभी शो नहीं कर रहा है। देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाउनवर्ड, देखो ये डाउनवर्ड एरो है, इसको क्लिक करूँ तो ये अपवर्ड शो करना चाहिए, पर ये अपवर्ड अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने सेट ही नहीं करा।
तो अभी ये अपीयर डिसअपीयर को हटाते हैं, स्टॉप इट, शो द कोड। ठीक है, देखो ये कैसे काम करेंगे हम लोग, अब इस पे देखते हैं। In the dog item button function, add an if statement that updates the image vector value based on the expanded state as follows. तो अब expand less वाला बटन भी हम इंपोर्ट करेंगे, डॉग आइटम बटन में जाएंगे, आइकन बटन में अपडेट्स करेंगे थोड़े, डॉग आइटम, ये तो मैंने आपको दिया, हॉबी, ये रहा डॉग आइटम बटन, ऑन क्लिक में ऑन क्लिक है। अब देखो इमेज वेक्टर में इफ एक्सपैंडेड तो एक्सपैंड लेस, एल्स ये, ठीक है, कहाँ गया, ये इमेज वेक्टर है, इसको करो ऐसे, इफ एक्सपैंडेड तो ये, एल्स आइकन्स डॉट फिल डॉट एक्सपेंड, ये भी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, एक्सपैंडेड होगा तो एक्सपैंड मोर, नहीं तो एक्सपैंड लेस। ठीक है, notice how you wrote if else in the previous code snippet. This is the same as using the curly braces in the following code. ठीक है, जैसे सी सी प्लस प्लस में मैटर नहीं करता ना तुमने इंडेंटेशन छोड़ा या नहीं छोड़ा, वैसे इसी तरीके से इसमें भी मैटर नहीं करता तुमने इंडेंटेशन छोड़ा या नहीं छोड़ा। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है, पहली बात तो वही कॉटलिन है। द कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल इफ देयर इज अ सिंगल लाइन ऑफ कोड फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट। Run the app on your device or emulator, or use the interactive mode in the preview again. Notice the icon alternate between expand more, expand less icons. एक सेकंड मैं इसे रिफ्रेश कर लूँ पूरे को। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। Note on interactive mode. Interactive mode allows you to interact with the app the same way you would interact on device. However, the preview mode is not a substitute for running your app on Android for on a device for testing. Good job updating the icon. When you expand the list items, did you notice the abrupt height change? ये देखो, the abrupt height change does not look like a polished app. To resolve this issue, you will next add an animation to your app. तो हम एनिमेशन ऐड करेंगे अब। तो देखो एनिमेशन ऐड करने से पहले हमको ये चला के देखना है, एक बारी इसने भी बोला चला के देखो। देखो अपना रेगुलरली चेक करते रहना बहुत जरूरी है कि हम बना क्या रहे हैं। इफ यू कैन नॉट चेक व्हाट यू आर मेकिंग देन यू आर मेकिंग नथिंग। चलो एक बारी, एक मिनट बस, एंड्रॉयड में अपना एमुलेटर मैं यूज़ नहीं करता, नॉट नॉट इन द फेवर ऑफ एमुलेटर, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल डिवाइस है तो क्यों एमुलेटर इस्तेमाल करना। 1 मिनट, डेवलपर ऑप्शन ऑन करने पड़ते हैं इसके लिए। डेवलपर, क्लाउड डिबगिंग, हो गया। ठीक है, अब रन करके देखते हैं हमारे ऐप को। अनयूज्ड इंपोर्ट डायरेक्टिव्स हैं, कंट्रोल ऑल्ट ओ। ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है, चल रहा है। आप डिसगार्ड डीबग फाइल डिपेंडेंसी। तो पता है अभी क्या हो रही है, अभी इसने ऐप बनाने तो सिखा रहा है पर जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो नहीं है अभी, क्योंकि इसके अंदर मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे ऐप्स बढ़ता जा रहा है, ऐप्स का साइज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एसेट्स भी यूज कर रहे हैं अच्छे खासे।
तो अब भारी भरकम मैप्स तो नहीं दे सकते ना छोटे टास्क के लिए। तो अभी वो जो ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज है ना वो नहीं है। अभी बिल्ड कर रहा है ग्रेडल। टास्क ऐप मर्ज एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटीडेक्स डीबग। इन्फो तो क्या ही डाउनलोड करेगा सर। करने देते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 1 minute 39 40 41 42 43 44 45 46 47। 2 मिनट जाएगा, ये पूरा जाएगा। So let me edit it. हो गया। अब बस डिवाइस में लॉन्च होना बचा है। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस आ गया। ग्रेडल बिल्ड काफी बड़ा हुआ है इसका। तो ये मेरा बैकग्राउंड में है इसलिए। वो देखो अभी भी हम लोगों ने एनिमेशन ऐड नहीं करा, तो ये अपीयर डिसअपीयर हो रहा है, पर देयर इज अ डिफरेंस। ये सारे अप एरोज हो गए हैं। ये क्या पंगा कर दिया है मैंने? ये मैंने गड़बड़ करी है कुछ। वरना डिफॉल्ट में तो ये शो करना चाहिए। मैंने करी है गड़बड़ कुछ। कोई नहीं, कोई बात नहीं। पता है इसको कैसे ठीक करा जा सकता है। इसको ना, कहाँ गया वो एक्सपैंड लेस और एक्सपैंड मोर वाला? ये बाद इम्यूटेबल स्टेट आइकन में देखो, वेक्टर दिखेगा तुम्हें। ये रहा वेक्टर। ये मैंने एक्सपैंड मोर और एक्सपैंड लेस वाला जो पंगा है ना, इसका करना पड़ेगा। एक्सपैंड मोर और एक्सपैंड लेस वाला पंगा, जो मैंने कर दिया। एक्सपैंड लेस, ठीक है। रीबिल्ड करते हैं, ठीक चले। वैसे एक बारी बिल्ड होने के बाद ये आसानी से बिल्ड हो जाना चाहिए, दूसरी बात तो। बाकी स्क्रैच से करेगा तो स्क्रैच से ही करेगा। आप क्या करें, आप 3 मिनट का बिल्ड और लो।
बहुत स्मूथ और अच्छा आप बना पर यूज करने का मन करे ऐसा आप बना भाई। यूज करने का मन करे भाई ऐसा आप बना। ट्यूटोरियल भी अच्छा ही है। चलो अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ तो अप एरो हो जा रहा है, और फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो डाउन एरो आ जा रहा है, और डिफॉल्ट में डाउन एरो ही चाहिए हमें। सो अभी पर एक इशू है। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे जो आ रहा है ना अबाउट वाला सेक्शन जिसमें हॉबी बता रहे हैं उनकी, तो ये जो है अभी अपीयर डिसअपीयर हो रहा है, ना कि जो है एनिमेटेड है। हाँ, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं हमारे ऐप में। नाउ वी विल ऐड मल्टीपल एनिमेशंस। इसने एक ही यूज करी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि हर एक कंपोजेबल में अलग अलग ऐड कर दूं। हर एक लिस्ट ऑफ बनाते हैं मल्टीपल एनिमेशंस का, और जितने जितने कंपोजेबल्स बन रहे हैं ना उतने ही वो कर देते हैं, क्या नाम है, उतने ही जो है वो बना देंगे हम एनिमेशन। ये मैं टेस्ट ऑफलाइन करूंगा, अगर टेस्ट करूंगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो जो है वो तो है ही। Animations can add visual cues that notify users about what is going on in your app. They are especially useful when the UI changes state, such as when new content loads or new action becomes available. Animations can also add a polished look to your app. In this section, you will add a spring animation to animate the change in height of the list item. अब जो थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है ना आपके अंदर, थोड़े मोड़े जो बहुत माइनर माइनर से डिफरेंसेस तुम्हें दिखेंगे आप में, अगर तुम देखोगे तो। देखो तुम्हें कहाँ गया हूँ, ये रहा। तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें माइनर माइनर डिफरेंसेस दिखेंगे कि ये वाला कंपोजेबल और ये वाला कंपोजेबल, देखो नीचे वाला मुझे बड़ा लग रहा है, ऊपर वाला छोटा लग रहा है। इस टाइप से तो छोटे छोटे से तुम्हें लगेंगे। जरूरी नहीं है लगे ही, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा भाई, खत्म बात। ठीक है, बात ये है सीधी सी। Spring animation. Spring animation is a physics-based animation derived by a spring force. With a spring animation, the value of and velocity of movement are calculated based on the spring force that is applied. For example, if you drag an app icon around the screen and then release it by lifting your finger, the icon jumps back to its original location by an invisible force. The following animation demonstrates the spring effect. Once the finger is released from the icon jumps back, mimicking a spring. देखो spring effect. चल, spring force is guided by the following two property. एक तो damping ratio, the bounciness of the spring, और एक stiffness level, the stiffness of the spring. That is how fast the spring moves towards the end. Below are some examples of the animations with different damping ratios, and stiffness levels. High bounce देखो, ठीक, no bounce, high stiffness। हे भगवान, नीचे आने को रेडी ही नहीं है, मतलब जैसे मूव करने को रेडी ही नहीं है ये, अपने स्टार्ट से दूर होने को, अपने एंड से दूर होने को तैयार ही नहीं है। और वेरी लो स्टिफनेस, ये बिल्कुल ही लो है। हाई बाउंस भी एक तरीके से ठीक है। हाई बाउंस लगाएंगे अपने में, कोशिश करते हैं, चलो कुछ ऐसा ही ऐड करने की। क्या था, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। स्प्रिंग इफेक्ट। Take a look at the dog hobby function. Call in the dog item composable function. The dog's hobby information is included in the composition. Based on the expanded boolean value, the height of the list item changes depending on whether the hobby information is visible or hidden. Currently, this transition is jarring. In this section, you will use the animate content size modifier to add a smoother transition between the expanded and not expanded states.
नो नीड टू कॉपी ओवर। ठीक है ठीक है ठीक है, वो वैसे भी नहीं करना क्योंकि डॉग आइटम और फिर ये वाला कंटेंट हट जाएगा। ठीक है। In main activity in dog item, add a modifier parameter to the column layout. कॉलम लेआउट में हम जो है मॉडिफायर पैरामीटर ऐड करेंगे डॉग आइटम में। ये लो, टेक्निकली हम इधर ही हैं और हमने इधर अभी नहीं करा था क्योंकि इसने करवाया नहीं था। तो क्या मॉडिफायर कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम में मॉडिफायर ऐड कर दिया हमने। चेन द मॉडिफायर chain the modifier with the animate content size modifier to animate the size list item height change। अब हम मॉडिफायर में ऐड करेंगे एनिमेट कंटेंट साइज को इस कॉलम में। ओके, नाउ देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग वी आर गोइंग टू डू। एनिमेट कंटेंट साइज, ओके। इन द करंट implementation you are animating the list item height in your app, but the animation is so subtle that it is difficult to discern when you run the app. To resolve this, you use an optional animation spec parameter that lets you customize the animation। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी भी सिर्फ ये लगाने से फंक्शन जो है, अभी भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई है। वो जो रिजिडिटी सी महसूस हो रही है हमें कि मतलब अपीयर डिसअपीयर हो रहा हो जैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंटेंट साइज में एक ऑप्शनल पैरामीटर है एनिमेशन स्पेक नाम से, उसको हम कस्टमाइज करेंगे, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। फॉर which द एनिमेशन इज इन एंड आउट विद नो बाउंड। टू अचीव दैट, add the animation spec parameter to the animate content size function call। Set it to spring animation with damping ratio no bouncy, so that there is not bounce to it, and a stiffness medium parameter to make the spring a bit stiffer। तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे। एनिमेशन स्पेक में स्प्रिंग जाएगा, स्प्रिंग में ये चीजें ऐड होगी। एनिमेशन स्पेक में स्प्रिंग, स्प्रिंग में डैम्पिंग रेशियो, स्प्रिंग डॉट डैम्पिंग रेशियो नो बाउंसी, रेशियो नो बाउंसी, कॉमा स्टिफनेस में स्प्रिंग डॉट स्टिफनेस मीडियम रखते हैं क्योंकि सरकार मीडियम प्रेफर कर रही है, जो कि ठीक है ठीक है। अभी जब आती ना हो ना चीज, तो जो कह रहा है वो फॉलो कर लो। अब चीज आती होगी तो हम जो मन करेगा वो करेंगे। ये इसको मैं ना कॉलम के तरीके से इसको हम इसको मैं सॉर्टेड करता हूँ। ये इस तरीके से हो गया। नाउ व्हाट, check out woof preview in the design pane and use the interactive mode, or run your app on an emulator or device to see your spring animation in action। You did it, enjoy your beautiful app with animation। ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल वाला पार्ट करना बहुत जरूरी है। तो लोड करके दोबारा देखता हूँ ऐप कैसी काम कर रही है। और सबसे पहले ये हटाओ, डार्क मोड हटाओ। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ, चलो कोई नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था तो कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा वो, देख रहे हो, देखो अब वो अपीयर डिसअपीयर नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, एनिमेशन तुम्हें दिखेगा। ठीक है, यही चीज हमें अचीव करनी थी। इस और कितनी तेज करूँ, ये सब झेल लेगा। ठीक है, अब स्टिफनेस को मैं एडिट करके देखता हूँ इसको क्या हो रहा है। डिस्कनेक्ट नॉर्मली होता नहीं है।
स्टिफनेस लो करते हैं, ठीक है, और रीलोड करो। लाइव एडिट नहीं करता मैं अलाउ इसको, क्योंकि लाइव एडिट में और ज़्यादा जो है ये रिसोर्सेज खा जाता है मेरे। नोटिफिकेशन सारी क्लियर करो, एक तो क्लियर ऑल आ गया। स्टिफनेस लो करो, वो देखो कितने स्मूथ से आया ये लो पे। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है बेला। इसके अंदर देखो कितना स्मूथली आ रहा है भाई, बहुत स्मूथ आ रहा है। यूजेबल ऐप बन गया, चलो नाउ यूजेबल ऐप बन गया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट विद अदर एनिमेशन। एनिमेट एस्ट्रिस्क एज स्टेट। तो ये क्या है पहले, अब ये पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। The animate asterisk as state functions are one of the simplest animation APIs in Compose for animating a single value. You only provide the end value or target value, and the API starts animation from the current value to the specified end value. Compose provides animate asterisks as state function for float, color, DP, size, offset, and integer, to name few. You can easily add support for other data types using animate value as state that that takes a generic type. Try using the animate color as state function to change the color when a list item is expanded. कैसे काम करता है ये? Dog item में declare a color and delegate its initialization to animate color as state function. इस तरीके से कलर और फिर एनिमेट कलर एज स्टेट, इसमें डॉग आइटम में ना, क्या वार कलर बाय एनिमेट कलर एज स्टेट, ठीक है। सेट द target value named parameter depending on the expanded boolean value. If the list item is expanded, set the list item to tertiary container color, else set it to primary container color. Okay, target value if expanded, set, यही है ना, हाँ, मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट क्या है, टेरिशरी कलर अगर एक्सपेंडेड हो तो। टेरिशरी क्या था, टेरशरी, टेरशरी टेरिशरी, टेरशरी कंटेनर एल मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर, ठीक है। क्या हो गया इसको, अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो करो, नहीं तो काय 3 पार्ट, ठीक है। इंपोर्ट नहीं करा होगा ना आपने, ठीक है, ये तो कर दिया। तो एरर क्या है, प्रॉब्लम क्या, प्रॉपर्टी डेलीगेट मस्ट हैव अ सेट वैल्यू। हाँ तो मैंने सेट वैल्यू बता तो दी है। एनिमेट कलर एज स्टेट, वही जो इसमें सजेस्ट करा करने के लिए। कोई नहीं, देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द फर्दर वर्क वी हैव लेफ्ट, देखते हैं। सेट द कलर एज द बैकग्राउंड मॉडिफायर टू द कॉलम।
अब इस कलर को बैकग्राउंड मॉडिफायर ऐड कर देंगे कॉलम में। ये एनिमेशन का है, डॉट कलर मॉडिफायर ना, बैकग्राउंड मॉडिफायर में कलर इक्वल कलर। ठीक है, check out how the color changes when the list item is expanded, प्राइमरी और टेरिटरी। चलिए, पर ये एरर क्या है, मुझे एरर नहीं समझ आ रहा। I just provided whatever it wants. एनिमेट कलर है स्टेट, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एनिमेट कलर एज स्टेट, टारगेट वैल्यू दे दी। ओके, टारगेट वैल्यू दे दी, और क्या है? इसमें भी एनिमेशन स्पेक है, लेबल है, फिनिश लिसनर है। इसको रीरन करते हैं, देखते हैं। लेकिन यार एरर आ रहा नहीं। अरे यार, लाओ इसमें देखते हैं, जहाँ फंसो वहाँ जम जाओ। In this LOC, what is the error? Thinking. LLM model. The error is most likely missing or import or missing label parameter which requires in newer versions of Jetpack Compose. तो get और set value दोनों color animation label color animation। ठीक है, the error is the error is showing with by delegate। Thinking, 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 thinking। हम्म हम्म। लाओ देखें, गेट वैल्यू सेट वैल्यू इंपोर्टेड है क्या? है, इंपोर्टेड है गेट वैल्यू, सेट वैल्यू भी इंपोर्टेड है। एक्चुअली दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्यों सेट अलग से करना? ला इस पूरे को कॉपी करो। नाउ सी व्हाट इज द एरर। लाओ इतने इसके रिसोर्सेज का है यूज कराने फालतू में। क्लियर ऑल। जब तक क्लीन नहीं होता तब तक क्यों उसके रिसोर्सेज यूज कराने फालतू में। हाँ, बस प्रीव्यू यूज करो। Based on the full provided code, your blah blah is already proven, which is the most common fix। वाल और वार का पंगा, कंपोजेबल यू हैव। हाँ, तो मुझे वार ही चाहिए। चल वाल, वाल से चाहिए, अच्छा। वो तो फिर इसने भी सजेस्ट करा होगा, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। क्लियर ऑल, इसको बंद करो, जलाओ और ऐप चलाओ। ऐप चल जाए अब। कंपोजेबल के कलर चेंज होने वाले हैं।
क्या हो गया? मेरी वायर पुरानी हो, पुरानी की है बड़ी। आ गया। चलो रीबिल्ड करो। ये देखो, शरी शरी से वो, भाई मस्त आता। एनिमेशन गजब सेट है भाई। थोड़े और कलर सेंस लगा दो तो गजब है। मुझे स्लो वाला ज्यादा अच्छा लगता। यू कैन प्रोसेस इट क्योंकि। और अगर मैं डार्क में करूँ तो डार्क की कैसा दिखता है डार्क में ये? वो डार्क में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा फाइनल वुफ ऐप बना है, आई थिंक इस कोड लैब के लिए, नॉट फॉर द होल थिंग। ठीक है, तो ये हो गया। सॉल्यूशन कोड हमारा इधर है, डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं, लर्न मोर और वो सब है, तुम चाहो तो देख सकते हो। कोड लैब हमारी डन हो चुकी है ये वाली। धीरे धीरे कॉन्कर करेंगे सब, जल्दी कोई नहीं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया है। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? ये डन में काउंट नहीं हुआ। अरे भाई एंड्रॉइड का ये है, हर 5-5 10-10 मिनट में ना ये वो होता रहता है। यू वांट अनदर लर्निंग बैच, बिजनेस डन। और इसको कंप्लीटेड काउंट करवाना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक काउंट नहीं करवाया तब तक कुछ नहीं करा तुमने। फिर क्या है, टेस्टिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी, प्रैक्टिस, बिल्ड सुपर हीरोज ऐप। ये 3 बचे हैं, इसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, पर धीरे धीरे ही करेंगे, जल्दी कुछ नहीं है, सीख सीख के चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड मुझे शेयर करना कम्युनिटी में कि अगर तुम भी कोई सेम ऐप बना रहे हो तो, तुमने भी फॉलो करा है कोड लैब को तो। और कम्युनिटी में देखूंगा मैं कि किसका कितना रहा, क्या करा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।